स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। ये दो तरह के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स from roots to upper parts of plant. It is composed of 4 types of cells: xylem tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. Xylem parenchyma living है और बाकी सब dead हैं। यहाँ पर tracheids are long elongated cells with tapering ends. They are dead and transport water थ्रू पिट्स। यहाँ पे पिट्स दिख रहे हैं ना आपको, इसके जरिए पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेसल इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यूजुअली डेड, हैव लिग्निफाइड थिक वॉल्स। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल is absent. Upper and lower portion. Now, parenchyma living, store food and nutrients. Fibers are dead and they provide mechanical support to plants. Phloem is the tissue that transport food from photosynthesis site to different parts of the plant. It is composed of 4 types of cells: sieve cells, companion cells, phloem parenchyma, phloem fiber. Phloem parenchyma लिविंग है, सीव ट्यूब्स लिविंग हैं और कॉम्पेनियन सेल्स लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। सीव सेल्स आर इलोंगेटेड and have thin cell walls. They have cytoplasm but no nucleus and other organelles. These cells are responsible for transportation of food and nutrients. Companion cells have cytoplasm, nucleus and other organelles. They perform the task required for sieve cells for living. Phloem parenchyma store food. Fiber have thick cell walls and they provide mechanical support. Now, what about animal tissues? Animal tissues, as you know, yes, are of different types. So when we breathe, we can actually feel the movement of our chest. How do these body parts move? अब आप बोलेंगे कि वहाँ पर मसल्स होती हैं और मसल्स की वजह से वहाँ पर मूवमेंट होता है। सो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो उसकी वजह से मूवमेंट होता है। नाउ टिश्यूज़ में, एनिमल टिश्यूज़ में अगर आप देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है एनिमल बॉडी में। एपिथेलियल कवर करता है सारे ऑर्गन्स को, कैविटीज को विद इन द बॉडी, और ये फॉर्म करता है एक बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सब के सब एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बने हैं। एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स टाइटली पैक्ड होती हैं, एक कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करती हैं। They have a small amount of cementing material between them and no intercellular spaces. So anything leaving or entering the body must cross at least one layer of epithelium. As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and external environment, and also between different parts of the body. Epithelial cells different तरह की होती हैं। अब हम बात करेंगे स्क्वैमस epithelial, then cuboidal epithelial,
cells columnar or ciliated or stratified. Now when we say about ये जो स्क्वामस की जो सेल्स होती हैं वो सिंपल फ्लैट होती हैं, इसको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं, थिन है, फ्लैट है और दे फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, एसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये सब स्क्वामस एपिथेलियम से कवर्ड है। स्किन जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. So this layers of squamous epithelium now called as stratified squamous epithelium. When absorption and secretion occur in the lining of the intestine, tall epithelial cells are present. तो इसको बोलेंगे कॉल्यूमनर, ये जो थर्ड वाला है कॉल्यूमनर, मीनिंग पिलर लाइक। कहाँ मिलेंगी? इंटेस्टाइनल वॉल पर। ये फैसिलिटेट करती हैं मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है उनमें सीलिया दिखेंगे। अब इनको सीलिएटेड, यहाँ पे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, अब इनको सीलिएटेड columnar epithelium बोलेंगे। These cilia can move and their movement push the mucus forward to clear passage. This type of epithelium is the ciliated columnar epithelium. इसके बाद है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्यूब शेप सेल्स होंगी, ये आपको लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में दिखेंगी, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में दिखेंगी। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन, वो फोल्ड हो जाती हैं और ग्लैंड फॉर्म करती हैं, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। ठीक, तो यहाँ पर जब ये फोल्ड हो जाती हैं तब इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, जो क्यूब शेड सेल्स हैं, ये फॉर्म करती हैं लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और जब ये फोल्ड हो जाती हैं कुछ पोर्शन में तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में मिलेंगे। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप